ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ 7.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਾਏ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਏ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਰਾਈਟ ਦੀ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖੀਏ cos 2x, ਅਸੀਂ ਜੇ cos 2x ਦਾ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖੀਏ ਤੇ cos 2x ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਬਵੀਅਸ ਆ sin ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤੇ cos ਆਉਂਦਾ, ਤੇ sin 2x ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ cos 2x। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ cos 2x ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, by look into function, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ sin 2x ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos 2x ਆਇਆ है ना। इस वजह की मान लो sin 2x की डिफरेंशिएशन की थी, क्या होगा cos 2x। बट sin 2x की डिफरेंशिएशन दी है सिर्फ देखो sin 2x इज इक्वल टू cos 2x ਤੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂशिएशन क्या आती है 2, मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिफरेंशिएशन sin 2x ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ 2 cos 2x। बट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ cos 2x ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ cos 2x। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। sin 2x ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ 2 cos 2x। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲਾ cos 2x ਆਏ। ਆ 2 ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ 1/2 sin 2x ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ डिफरेंशिएट करें cos 2x। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, that is 1/2 sin 2x। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਧਰ ਆ ਜੀ 3x² + 4x³। ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ x² ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ x² ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ x² ਆਏਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ x³ ਨੂੰ। x³ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ, ਮਤਲਬ ਜੇ x ਸਕੁਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ x³ ਨੂੰ। ਜੇ x³ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ x⁴ ਨੂੰ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ x³ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ x⁴ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ 3x² + 4x³। ਇਹ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੂਬਹੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਏ x³ + x⁴, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ax + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ax + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ax + b ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਹੋਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ax + b ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ sin 2x ਆਪਾਂ ਬਸ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ sin 2x ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ cos 2x ਆਇਆ, ਸੇਮ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗੀ ax + b ਦੇ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਸੇਮ ਹੁਣ a ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖੀਏ, ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ a ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ax ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ a ਤੇ b ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ 0। ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ।
बट सानू ते फंक्शन वो चाहिए जिहदी डिफरेंशिएशन करके कला ax प्लस b का होल स्केयर आए। इसका मतलब है कि ए दी डिफरेंशिएशन करके तो की आंदा पिया 3a इंटू ax प्लस b का होल स्केयर। सानू कला की चाहिए ax प्लस b का होल स्केयर। इनू इधर रह दो, बाकी टर्म इधर डिवाइड कर दो। 3a डिवाइड करता की आ गया 1/3a इंटू ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस b का होल स्केयर। मतलब ये कि जे आप ए वाले फंक्शन नू डिफरेंशिएट करते हैं तो साडा आंसर क्या होगा ax प्लस b का होल स्केयर आएगा। यार मतलब ax प्लस b का एंटी डेरिवेटिव बेटा फिर की आया 1/3a इंटू ax प्लस b का होल क्यूब। आ साडे कोल आ गया जी एंटी डेरिवेटिव। इस तरीके नाल असीं बाय इंस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। नैक्सट टॉपिक स्टार्ट कर लगे जी, दैट इज मैथड्स ऑफ इंटीग्रेशनस। कि हुण इंटीग्रेशन करन दे अलग अलग की साडे कोल मैथड्स ने। साइन एक्स की इंटैग्रेशन तो साडे कोल है, बट जे साइन एक्स स्केयर आ जाए उहदी इंटैग्रेशन नहीं पढ़ी। हुण अगे असीं साडी थोड़ियां स्टेटमेंट्स चेंज होई जाणगियां, उहनूं सॉल्व करन दे साडे मैथड भी जिहड़े इंटैग्रेशन दी चेंज होंदे जाणगे ते वन बाय वन आपां सब नूं बहुत ईजी वे नाल सिखांगे। सब तो पहला बेटा साडा फस्ट इंटीग्रेशन दा मैथड हैगा आ इंटीग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन इत्थे की होएगी कि जदों भी तुहानूं पूरे फंक्शन दे विच ये लगे कि किसी एक चीज़ की लागे डिफरेंशिएशन पई हुई आ, तुसीं उहनूं की आ सबस्टिट्यूट करना। किवें आपां सबस्टिट्यूट करना है उहनूं देखते हैं। आपां सम दो अकॉर्डिंग ही समझते हैं। देखो अगे इंटीग्रेशन करनी है आपां 2x इंटू साइन एक्स स्केयर प्लस 1 की। अजे तक असीं इंटीग्रेशन करनी सीखी सिंपल फंक्शनस की, सिंपल एक्स वाले हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ठीक है, कोई मल्टीप्लाई हो रहा, डिवाइड हो रहा, सैपरेट करके कर रहे। किसी भी जगह पे कोई इदां दा फंक्शन तुहानूं नहीं दिखा होएगा जिथे साइन का एंगल की होएगा क्वाड्रेटिक। जे ते साइन का एंगल लीनियर है नाल कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा फिर तो बहुत ईजी है। सीधी डिफरेंशिएशन करता कि साइन की जो आएगी साडे कोल माइनस कॉस ते नाल साडे कोल सॉरी इंटीग्रेशन करता कि आपां साइन की आ जाएगी साडे कोल माइनस कॉस ते नाल जिहड़ा कोफिशिएंट हैगा एक्स का उहदे नाल डिवाइड कर दांगे। बट इत्थे साडे कोल साइन जिहड़ा है उहदा एंगल की आ रहा है क्वाड्रेटिक आ रहा। जे साडे कोल साइन दा एंगल क्वाड्रेटिक है तो इहनूं सीधा इंटीग्रेट करना मुश्किल है। अज तक मैथड पढ़िया नहीं इहदे बारे। फिर असीं इत्थे पहला मैथड यूज करते हैं सबस्टिट्यूशन वाला। सानूं एंगल इत्थे प्रॉब्लम लगदी पई है तो आपां ये देखते हैं कि कोई इदां दे लागे फंक्शन तो नहीं पिया जिहदा एंगल नूं जे आपां कोई वेरीएबल सबस्टिट्यूट करिए ਉਹਦੀ लागे डिफरेंशिएशन पई हुई। सानू प्रॉब्लम एंगल करता पिया ना, एंगल साडा क्वाड्रेटिक है, एंगल लीनियर होना चाहिए। तो एंगल तो लीनियर वास्ते देखो भला इस पूरी एंगल की लागे डिफरेंशिएशन है एक्स स्केयर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन की होंदी है एक्स के 2x 1 की 0 2x ये लागे किते 2x पिया। आ देखो इसका मतलब ये कि मैं इस पूरे फंक्शन नूं सिंपलीफाई मतलब सिंपल फॉर्म च होर लिया सकता है। किवें जे मैं एक थोड़े जी वैल्यू नूं सबस्टिट्यूट करदा ते ओदी डिफरेंशिएशन लागे पई आ ते डिफरेंशियल लागे पई होए ते इहनूं किस तरीके नाल करना। ए फंक्शन की ए डिफरेंशिएशन है, इनू आपां एक वेरीएबल हुण आपां x तो एक होर वेरीएबल वाल मूव कर जाना, ठीक है। सीधा नहीं कि इहदी डिफरेंशिएशन पई है, करन दा तरीका कि इस फंक्शन की ए डिफरेंशिएशन है, तुसीं करना की है जिहदे फंक्शन की डिफरेंशिएशन पई आ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ t ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ y ਲੈ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਸਕਦੇ x नहीं ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। मैं x² + 1 ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ t क्योंकि मैं दूसरे वेरीएबल से चला जावांगा, इन्हें मैं t सब्सटीट्यूट कर लिया। हुण दोनों पासे करनी है पर डिफरेंशिएशन क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पहले x करते पे ही हुण आपड़ा फंक्शन t पे चला जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू पर t करना सानू dt चाहिए है। ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ डिफरेंशिएशन 2x पावर अगे पावर च 1 - 2x नाल आ जाएगा साडे कोल dx ते ਇਹਦੀ आ गई डिफरेंस साडे कोल जी t आ गई dt, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब है x² + 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ t ਤੇ डिफरेंशिएशन की आई 2x dx मतलब 2x ਜਿਹੜਾ dx ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ dt ਦੇ। ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਦੇਖੋ 2x ਤੇ dx ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ dt, ਆ ਬਣ ਗਈ t, ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ sin t dt, ठीक है। इस तरीके नाल असीं सबस्टिट्यूशन करनी है। जदों भी तुहानूं लगे कि किसी भी एक फंक्शन नूं जे आपां डिफरेंशिएट कर दे लागे उहदी डिफरेंशिएशन पई हुई आ तो उस फंक्शन नूं की सबस्टिट्यूट कर दो t पुट कर दो,
ठीक है। एक गल का होर ध्यान रखना, मान लो इतने एक्स स्केयर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन 2x है, जो कला इतने एक्स भी होंदा तां भी इसे सबस्टिट्यूट करना सी। कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होंदी, क्योंकि जो आप डिफरेंशिएट करना है वो तुसी कांस्टेंट नूं अपने आप ही उत्ते जाके डिवाइड कर लेना। सपोज इसे 2 ना होंदा, ए जी डिफरेंट 2x आ गई सी, सो 2 नहीं चाहिए क्योंकि 2 नहीं है, मान लो 2 जाके उधर की करना आप डिवाइड, फिर x dx जगह की लिखना सी dt/2, तो 1/2 बाहर आ जाना सी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हुण देखो साडा फंक्शन बन गया ना सिंपल, sin t dt, ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਸ cos, ਸੌਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ sin t ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ cos t ਪਲਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 1 ਸੀ ਮਾਈਨਸ cos x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 1 ਪਲਸ c, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ 2x sin x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 1 ਬਾਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ठीक है जी। होर सम करते हैं जी, इंटीग्रेशन साइन इनटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x के, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। देखने सम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट सम जे आप सबस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सोचना है, पूरे फंक्शन देखो कि कोई इदा का फंक्शन, पहली गल तो साइन का एंगल की आ रहा है tan इनवर्स, आप ही देखना कि सब तो कॉम्प्लीकेट चीज़ केड़ी आ रही है साइन का एंगल tan इनवर्स। देखो आप एंगल रिमूव करना कि tan इनवर्स की लागे लागे डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन की होंदी है 1/1 प्लस एंगल का स्केयर दैट इज x स्केयर। देखो कि हमारे को 1/1 प्लस x स्केयर आ रहा है, देखो आ रहा है देखो 1/1 प्लस x स्केयर, इस करके मैं इतने पुट कर दूंगा tan इनवर्स x ਨੂੰ t पुट कर दांगा, ਇਹਦੀ डिफरेंशिएशन आ गई 1/1 प्लस x स्क्वायर, x की आ जाएगी dx, t की आ गई dt, ਇਹਦੀ जगह ਤੇ मैं t पुट कर दांगा dt, ठीक है जी। मेरा सम की बन गया sin tan इनवर्स x ਨੂੰ पुट किया मैं t, ਤੇ आ देखो 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx, ये सारा की आ गया dt, ਇਹਦੀ जगह मैं dt पुट करता। लो जी सम मेरा बहुत सिंपल बन गया। ये है बच्चे मैथड सबस्टिट्यूशन का, कि जो भी तुम हूँ तुम सोचोगे कि सानू किवें पता लगेगा कि इंटीग्रेशन जी है फंक्शन की किस तरीके करनी है। बच्चे यही है कि जोड़े मैथड आप सीखी जाने सारे अपने माइंड च रखने, पहला ही सोचना कि डायरैक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं आप कर सकते फंक्शन सिंपल या सैपरेट करके, जो नहीं फिर आप सबस्टिट्यूट सोचनी है कि सबस्टिट्यूट करके कर लीए, जो भी नहीं फिर अगे आप आने वाले बहुत सारे मैथड्स होर भी करने हैं, फिर 1 बाय 1 सारे अपने माइंड में एक बार दोहराने, ठीक है। चलो साइन टी फिर क्या आ गया जी माइनस cos टी ते प्लस सी माइनस cos टी ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ tan ਇਨਵਰਸ x, ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਦੀ ਲਾਗੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ डिफरेंशिएशन हर एक फंक्शंस दी लॉग हो गया, जिवें tan इनवर्स फंक्शंस हो गए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो गए, हर एक दी डिफरेंशिएशन जी याद होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट सम करते देखिए समझे। नेक्स्ट tan पावर 4 स्क्वायर रूट x इंटू सीकेंड स्क्वायर रूट x अपॉन स्क्वायर रूट x, इन्हें डिफरेंशिएट करना। फिर वही गल जी देखते हैं, सानू फिर कुछ क्लीयर नहीं हो रहा कि डिफरेंट इंटीग्रेशन जी है वो किस तरीके नाल सी करनी। बस ये देखो कि हम सबस्टिट्यूशन मैथड ही कर रहे हैं, तो देखो कोई फंक्शन जिहदी लागे डिफरेंशिएशन होए, फंक्शन है tan, tan की डिफरेंशिएशन की होंदी है सीकेंड स्क्वायर, लागे सीकेंड स्क्वायर भी है। हुण दी कहोगे सर tan की पावर 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीकेंड की डिफरेंशिएशन की होंदी है सीकेंड इंटू tan, बट सीकेंड जे आप देखते हैं नाल सीकेंड इंटू tan, बट फिर भी tan की पावर 3 है, 4 हैगी आ, एक tan आप यूज भी कर लाँगे, फिर 3 tan जो पावर वो बच जाएगी। बट जे मैं एक tan स्क्वायर रूट x पुट कर लेना है सबस्टिट्यूट करदा, तो यही डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर रूट x तो होएगी, नाल स्क्वायर रूट x की डिफरेंशिएशन भी थल्ले पई हुई है पूरा। पहला आइडिया इत्थों हो गया भी tan नूं आपां सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। पहला ही करके देखते हैं कि साडे कोल की बनदा है। पुट किया tan स्क्वायर रूट x नूं t, ਇਹਦੀ डिफरेंशिएशन की आ गई देखो जी सीकेंड स्क्वायर रूट x नाल एंगल दी स्क्वायर रूट x की आनी है 1/2 स्क्वायर रूट x dx इज इक्वल टू dt। सीकेंड स्क्वायर रूट x, सीकेंड स्क्वायर रूट x थले की है साडे कोल जी
ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ x ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾਲ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, 2 ਬਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ t, ਜੋ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹ ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚ ਅਪਨ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, a ਵਾਲੇ 2 ਨੂੰ ਉਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ 2dt, ਮਤਲਬ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ x ਅਪਨ ਰੂਟ x into dx, ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 2dt ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ t, ਪਾਵਰ ਆ ਗਿਆ 4, ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2dt, 2 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, t ਪਾਵਰ 4 dt, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4 म्हणजे x ਦੀ ਪਾਵਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 into ਪਾਵਰ 1 ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਲੱਸ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਪਲੱਸ c, ਇੱਥੇ t ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਆਗਾ 2 into tan रूट x ਦੀ ਪਾਵਰ 5 upon 5 plus c। ठीक है जी, इधर आओ जी, इधर ਨੂੰ देखो 1 upon x plus log x। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਣੀ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। log x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1 upon x। ਜਦੋਂ ਵੀ log x ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਾਹਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ log x ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਲੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਪਈ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੀਚੇੋਂ x ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਰੀ ਨਾਲ dx 1 plus log x ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ t ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ 1 plus log x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ 1 ਦੀ ਆਊਗੀ, 0 log x ਹੈਗੀ 1 by x ਤੇ 1 by x ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਈ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ 1 plus log x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ t, ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 1 by x dx is equal to dt। now our function ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 1 upon 1 by x dx dt ਆ ਗਿਆ, 1 plus log x t ਸੀ 1 by t dt, ਤੇ 1 by t 1 ਪਾਉ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਹੋਈ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ log x, ਤੇ 1 by t ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਈ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ log t। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 by t ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ log, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮੋਡੂਲਸ t प्लस c। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਡੂਲਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜੋ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ log 1 plus log x plus c। ठीक है जी, ये आ गई है इंटीग्रेशन। देखिए नेक्स्ट वन जी, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 plus 3x की क्यूब। ठीक है, पावर ऊपर फिर 3 है। ठीक है जी, हाँ जी ठीक। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ t ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਦੀ ਆਊਗੀ 0, 3x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਊਬ ਦੀ ਆਊਗੀ 9x ਸਕੁਅਰ। ਮੇਨ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਾਲ ਹੂਬਹੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ x ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ cos, ਨਾਲ cos ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਈਨ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ 2 plus 3x ਕਿਊਬ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ t, ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ 9x ਸਕੁਅਰ, x ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਈ dx ਇਕੁਅਲ ਟੂ dt। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ x ਸਕੁਅਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ x ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, 9 ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ x ਸਕੁਅਰ dx ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ dt by 9। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ dt upon 9, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ t ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਹੁਣ ਜੀ 1 by 9 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ t ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਜੇ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ 1 by t ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ log, ਬਟ ਥੱਲੇ ਪਾਵਰ 3 ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ into dt 1 by 9 रूल इंटीग्रेशन
पावर च एक प्लस जो पावर है वो थले प्लस सी 1/9 टी दी पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी, ठीक है जी, -2 जाके ना मल्टीप्लाई -18 टी थले आ जाएगा, ये आ गया -1/18 इंटू 1/t²। तो नैक्सट स्टेप टी जगह तो जो आप सबस्टिट्यूट किया वो वैल्यू कर दो इतने सबस्टिट्यूट। क्लीयर जी। नैक्सट देखिए जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है नैक्सट, साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ਹੁਣ दो साइन कॉस मल्टीप्लाई हो रहे होण, इत्थे आपां समझ तां कीता नहीं, कल एक साइन नूं डिफरेंट इंटीग्रेशन कीती आपां ओहदी, दो साइन ते कॉस इकट्ठे आ गए। जे मैं साइन एक्स नूं पुट करदा टी लागे कॉस एक्स ओहदी डिफरेंशिएशन है, बट लागे कॉस स्क्वायर एक्स है, फिर एक कॉस दे बच जूगा। जे मैं कॉस एक्स नूं पुट करदा आ टी लागे साइन क्यूब एक्स आ, साइन एक्स एक यूज हो जाएगा बट दो साडे कोल बच जाएंगे। फिर की कीता जाए, जदों भी इदा साडे कोल साइन ते कॉस दी पावर्स आउणगियां, जे साइन कॉस कल्ला है साइन एक्स इंटू कॉस, बहुत सिंपल सी, साइन पुट करना सी आपां टी लाके कॉस डिफरेंशिएट पई आ वो dt बन जाना सी, बट इत्थे पावर्स आ गई, पावर जो आउंदियां ने फिर आपां की करना है, कोशिश करनी कि पावर नूं पहलां ब्रेक किया जाए। ठीक है, तो ब्रेक असीं किस तरीके नाल करना, जिहड़ी साडे कोल कॉस स्क्वायर पावर है जां ते इनू साइन च कन्वर्ट कर लो, जे कॉस स्क्वायर नूं साइन च कन्वर्ट कर दे 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, फिर साइन क्यूब उन्नू फिर आपां ब्रेक करांगे साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स दे विच, ते इत्थों साइन स्क्वायर आ जाएगा साडे कोल 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बट नहीं, ब्रेकेज हुण किस तरीके नाल करनी, जो ब्रेक करना छोटी पावर नूं असीं एज टीज ही रहन दिंदे आ, जिहड़ी वड्डी पावर है आपां उहनूं पहलां ब्रेक करके देखते हैं। ठीक है, साइन क्यूब नूं ब्रेक करते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स नाल कॉस स्क्वायर एक्स एज टीज कहते हैं। हुण देखो कॉस नूं पुट करदा जे मैं टी लागे साइन डिफरेंशिएशन हैगी, बट प्रॉब्लम है कि नाल आ साइन स्क्वायर भी हैगा, इनू भी जे कॉस कन्वर्ट कर लईए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। हुण देखो जे मैं कॉस एक्स नूं पुट करदा टी तो लागे साइन एक्स की पई डिफरेंशिएशन हुंदी, कहोगे कि सर कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हुंदी है, मैं तो पहले भी कहा कि साइन दी कांस्टेंट दी कोई प्रॉब्लम नहीं, साडा फंक्शन लागे सेम बनना चाहिए, वो आप एडजस्ट कर लांगे। ठीक है, फिर की करिए आप पुट करना cos x नू इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल dt, क्योंकि आप सबस्टिट्यूशन करनी है ना, तो जेडे फंक्शन लागे डिफरेंशिएशन है उस फंक्शन नू आप एक होर वेरीएबल दे विच कन्वर्ट कर देना, लैके चल जाना। ठीक है, तो पुट करने आप इत्थे फिर ही अड़ा पॉसिबल होएगा सम सॉल्व करना है। साइन एक्स dx आ गया कल dt, हम साइन एक्स dx चाहिए है माइनस उधर मल्टीप्लाई कर लो, साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt, लाओ जी इधर जगह माइनस dt आ गया, एक ही बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू माइनस dt, लाओ जी अंदर मल्टीप्लाई कर दो जी, माइनस बार कर लो टी स्क्वायर माइनस टी पावर 4 dt। हुण अगे सैपरेट कर दी इंटीग्रेशन जी, माइनस यदि वक्री तो माइनस माइनस प्लस, यदि क्या हो माइनस टी पावर 3/3 प्लस यदि आ गई टी पावर 5/5 प्लस सी, अगे टी डी वैल्यूज ने वो सबस्टिट्यूट कर देनी है। क्लीयर जी, ये सी कुछ सबस्टिट्यूशन वाले सम्स, मैथड ऑफ सबस्टिट्यूशन के नाल जो अपन सॉल्व किया इंटीग्रेशन नूं, तो होप करते तुहानूं मैथड क्लीयर होया होएगा। जिन्ने भी सम्स आपां सॉल्व किए नोट डाउन करके तो इन्हां दी प्रैक्टिस करनी है। कुछ जिवें साडे कोल टैन कॉट इन्हां दी इंटीग्रेशन अभी सैकेंड एक्सरसाइज में उन्होंने यूज़ की हुई है, इस करके मैं वो रिलेटेड सम अजे सॉल्व नहीं करवाए। नैक्सट लैक्चर पहले आप उन्होंने इंटीग्रेशन के बारे पढ़ांगे, टैन की इंटीग्रेशन की होंगी है, कॉट की इंटीग्रेशन की होंगी है, फिर उन्होंने रिलेटेड आप 7.2 के सम सॉल्व करांगे। बाकी जिन्ने भी सम्स सीधे बाय सबस्टिट्यूशन मैथड सॉल्व होंगे तुसीं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है जी, नैक्सट आप 7.3 एक्सरसाइज नाल टैन कॉट वाले सम जिहड़े आ इंटीग्रल क्वेश्चन वाले वो नैक्सट लैक्चर